The new chapter is history, because till now we completed two chapters in geography. Then we already had a session for political science, power sharing, right? And economics development. Now we are going to touch history. Before we proceed into the chapter, that is rise of nationalism in Europe. This will be the chapter. You have two chapters. One is rise of nationalism in Europe and the second one is nationalism in India. मतलब this will be common for all of you. आप किसी भी स्कूल में हो, this is going to come in your boards. Whereas there would be two more chapters like making of global world and industrial age of industrialization, which will be there only for your respective schools, and that would be assessed only when you are having your UTs or PTs. They will not come in your boards. But these two chapters are going to come in the boards. If you remember last year when we were doing this chapter, when we were doing this French Revolution, I told you कि जो French Revolution है, that जहाँ वो खत्म हो रहा है, that is rise of Napoleon, वहाँ से this chapter is going to begin. This is actually, आपकी language में अगर मैं बोलूँ तो this is the sequel of what we call as the French Revolution. Now I'm just telling you what you will be learning in this chapter. This is about, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था. हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये पढ़ा था कि फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री जहां लिबर्टी, फ्रीडम, दीज वर्ड्स केम अप. इंडिया को हम नहीं लेकर आएंगे बिकॉज इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड. इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम एंड द वेरी बिगिनिंग वी adopted democracy, but in other parts of the world, the word called liberty, freedom, citizens, these were not there. Many of the countries were monarchy or they were ruled by autocracy. Aristocracy means the rich people had more power, और dictatorship जैसा हमने पढ़ा था in the chapter of Hitler, rise of Nazism. जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ, फ्रांस became monarchy, then it became republic, then it became then for a short period under directory, then ultimately it came under Jacobin Robespierre, then a direct. उसके बाद when Napoleon Bonaparte overtook France, during those period, उस पीरियड के दौरान there were other revolutions that started across Europe, और वही हमारा ये चैप्टर है. यूरोप को आज अगर आप मैप में देखोगे, अगर आप अभी प्रेजेंट मैप को देखोगे तो यू विल फाइंड ऑन द लेफ्ट इट इज यूके, देन देयर इज अ वाटर बॉडी, देन आपका स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी. यू विल फाइंड ऑल दीज एरियाज. पोलैंड ऑन द एक्सट्रीम, दैट इज आपका रशिया, उसको हम टच नहीं कर रहे. लेकिन ये जो मैप है जिसको आज हम देख रहे हैं, दिस मैप हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री. इट इज नॉट दैट ये जो आज हम देख रहे हैं फ्रांस पहले ऐसा था, नो. जर्मनी ऐसा था, नो. सम ऑफ द एरियाज जो थे वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड थे. आज जो फ्रांस में कुछ एरियाज हैं, दे वर पार्ट ऑफ सम अदर कंट्री. सम और जैसे कि पोलैंड के कुछ जो एरियाज थे, दे वर पार्ट ऑफ रशिया. एंड देयर यूज्ड टू बी 2-3 मोर कंट्रीज. यूगोस्लाविया जो अब मैप में नहीं है, देन चेकोस्लोवाकिया जिसको अब हम 2 कंट्री के नाम से जानते हैं, चेक एंड स्लोवाकिया.
and Prussia, which is now Germany. So the current map that we see, what happened, अलग अलग देशों में क्या हुआ था. फ्रांस में तो हमने पढ़ा, उसका ही हम लोग जो है सीक्वल पढ़ेंगे कि फ्रांस में उसके बाद क्या हुआ था. व्हेन नेपोलियन बोनापार्टे हार गया था in 1815, after 1815 what happened, who became the ruler. Then there are certain parts, अगर आप इटली के नीचे मैप देखोगे तो you will find there are small, very small, what we can say, countries. Barcelona, Macedonia, Greek, and ये जो छोटे 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 एम्पायर्स थे, इनका क्या रहा, what was there. Then Greek, how it became independent. जर्मनी कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, जर्मनी कैसे इंडिपेंडेंट हुआ. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ट्रीटी ऑफ वेना में क्या क्या प्रोविजंस आए. देन ग्रीक कैसे हुआ. एंड देन देयर इज वन मोर प्लेस विच इज नॉट इन द मैप ऑफ यूरोप, लेकिन वो थोड़ा अलग है, यूरोप ही माना जाता है, यूके, दैट इज आपका यूनाइटेड किंगडम, लंदन. उसका फॉर्मेशन का व्हाट वाज द हिस्ट्री. Then last but not the least, we all always hear about World War. World War 1 हुआ था, World War 2 हुआ था. तो why did World War 1 happen? These are all the events that you are going to study in this chapter. Now, as a part of history and as your teacher, एक एक जो आपका पार्ट है, मीन्स ग्रीक का, फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, दैट वुड बी एनालाइज्ड एज 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन. मीन्स आप जब पढ़ोगे तो आपको वो इम्पॉर्टेंट, आपको ये नहीं देखना कि इसमें ये सारे हैं, आपको वो पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि डिस्क्राइब द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देन the Treaty of Vienna, its provisions, then unification of Germany, unification of Italy, then Great Britain, and what were the causes of World War 1. Right? So this will be the portion that you will be learning. If you see in your book or on the screen, you will find there is one beautiful photo, the 1 marker question. Side by side you can also note down that what kind of questions you will be having. This is a 1 marker question. This is a print, a paint made by Frederick Sorey. This question has been coming nowadays in the paper. हाँ, आज के मतलब कि who made this. ये वो पिक्चर है जो ये बताता है कि पहले यूरोप ऐसा नहीं था. यूरोप was not like this. ये उसने ड्रीम किया था that वर्ल्ड एक होना चाहिए. If you look on the screen, there is लिखा हुआ है eternity, angels are there, then you can see the liberty, and then you can see different flags. सबसे आगे US, उसके पीछे करके एक एक करके लोग आ रहे हैं. This he had dreamt. He had prepared a series of 4 prints जिसमें उनको लगता था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होना चाहिए, जिसमें उन्होंने दिखाया था द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women, age and social class equal, they are all marching, they are all paying their tribute to liberty, यानी कि they all wanted liberty. They are the artists of the time of French Revolution. आप देख सकते हो यहाँ पर द फ्रेंच, ये पेपर में अभी रिसेंटली आया था,
that is last उसमें, that what is that carrying? She is carrying the torch of enlightenment. Charter of Rights of Man. This was there in your Declaration of Charters of Man was there in your French Revolution. Why? और ये जो नीचे टूटा फूटा सा दिख रहा आपको, all these, ये है आपका the shattered remains of symbols of absolutist. The question here comes, what is an absolutist? What do you mean by absolutist? आप absolutist का मतलब क्या समझते हो? Absolutist का मतलब होता है एक गवर्नमेंट जिसमें that has no restraint on the power exercise. मतलब they will not be giving any power, any privilege to the people. सबका सब जो है रूलर के पास ही होगा. All the powers will be with the rulers. ये question absolutist वाला, if you look into the you like papers or anything, you will find this number of times coming in the paper. यानी उस वक्त में according to फ्रेडरिक शोरे अगर हम देखते हैं तो उस वक्त में the people did not have any power. So he has drawn this picture कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों के पास पावर होगा and absolutists will be lying on the floor. ये उसने विजन किया था जो बाद में सच हुआ था. In Shore's utopian vision, now what's the meaning of utopian? Utopia क्या होता है? Utopia मतलब an society so ideal, a society so ideal. मतलब आपको भी पता है कि आइडियल सोसाइटी कहीं पर भी नहीं हो सकता. आइडियल सोसाइटी कहीं पर भी नहीं हो सकता. नो सोसाइटी कैन बी आइडियल. जैसे मैं चाहती हूं, जैसा आप चाहते हो, वैसा आइडियल सोसाइटी. लेकिन उसने एक ऐसा सोसाइटी सोचा था जहां the people are grouped as distinct nations. पहले they were not nations. They were French, they were Germany, they were Belgium, but they were not nations. Nations किसको बोलते हैं? Now the question comes, what is nation? What is nation? Now the question comes, what is a nation? मतलब जब people of similar kind are living together, people of similar kind are living together, they are having a common flag, they are having a common language, उसको हम nation बोलते हैं. You will be reading this definition later in the later page. But उस वक्त में ऐसा नहीं था. You would not find such people, मतलब कि visions. तो ये शौर्य ने एक विजन बनाया था कि ऐसा एक टाइम आना चाहिए. लीडिंग द प्रोसेशन वे द पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर यूएस एंड स्विट्जरलैंड, क्योंकि यूएस एंड स्विट्जरलैंड पहले बने थे नेशन स्टेट्स. यूएस गॉट इट्स इंडिपेंडेंस एट द वेरी बिगनिंग, देन आपका स्विट्जरलैंड था which already was a nation state. France we have read in 9th standard. She is followed by the people of Germany. जब जर्मनी में नहीं था, ये आपका जर्मनी में स्टार्ट हुआ था अराउंड 1848. देन ऑस्ट्रिया, लुम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, जो मैंने आपको भी बताया. And it is shown that the Christ, saints and angels are gazing upon. So this is what we all are going to read कि फ्रांस नेशन कैसे बना, जर्मनी नेशन कैसे बना. इंडिया का तो अलग ही मूवमेंट है which you are going to read as a part of nationalism in India. But how did France attain its name? How did Germany? How did Greek? How did Italy? किसने किया था? Who are the people who had given this architect? How did the nationalism emerge?
जगह जगह नेशन स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज नेशन स्टेट, ये रहा देखिए, दिस इज अ डेफिनेशन, व्हाट इज अ नेशन स्टेट। यहां पर भी देख सकते हैं, अ नेशन इज अ क्यूलिमिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट endeavors, sacrifice and devotion, जहां पर we all are having a common past, a common flag, a common language. We needed a plebiscite, जहां plebiscite का मतलब क्या होता है, an open vote, an open vote, जैसे आपका रेफरेंडम करना है नहीं करना है। इंडिया के अंदर भी वी हैड यूज प्लेबिसाइड इन जूनागढ़, जहां पीपल आर हैविंग मोर पावर। दिस इज व्हाट, हाउ डिड दिस नेशन, हाउ डिड दिस यूरोप कम एज इट्स मैप, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। अब मैंने आपको उसी दिन बताया था, व्हेन आई हैड स्टार्टेड इवन इन 9th स्टैंडर्ड आल्सो, आई डोंट नो you remember or not, but I made you, or I made all of you tell, I had told everyone that जहां आपका ये खत्म होगा वहां से हमारा शुरू होगा the 10th standard. The first clear expression of what we call as nationalism came with the French Revolution. This came with the French Revolution. जब French Revolution था तब आया। France, as you would remember, was full-fledged territorial state under absolute monarch, that is Louis XVI. लेकिन उस वक्त में वहां पे जो लोग थे, because of the people of France, जिन्होंने sovereignty from monarchy to French citizen किया था, and it was French. अब ये जो पैराग्राफ है ना, दिस पैराग्राफ, you can expect this question as a 100% one of the most important question from this chapter. What were the ideas of the French revolutionary to create a sense of collective identity? ये आपका जो है पहला क्वेश्चन आता है कि उन लोगों ने, मतलब कि हम यहाँ पर थोड़ा सा पास्ट को याद कर रहे हैं, वी आर रिमेम्बरिंग द पास्ट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या मेजर्स किए थे? फर्स्ट, ये आपके पॉइंट्स में आएंगे, इट इज देयर इन द नोट्स ऑल्सो, बट दिस इज द वन। फर्स्ट इज एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आने के लिए हम कैसे अपने आप को एक बोलते हैं, जैसे अब हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, that's a collectivity. Whatever is related to our subjects हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं, या फिर similarly they had the ideas of La Patrie. This is a 1 marker question. This comes as an MCQ. ये MCQ की तरह आता है। What is La Patrie? अब मदर इन लॉ के लिए हम मदर के लिए म यूज करते हैं, पत्री के लिए पापा के लिए पी यूज करते हैं। So remember, La Patrie is fatherland. Then Robespierre had removed उसने जो है उस वक्त में जो सर एंड मदाम बोलते थे उसको रिमूव कर दिया था, एंड उसकी जगह पर था ले सितोयन। सितोयन मतलब सिटीजन। The people are not sir, the people are not madam, the people are not monsieurs, they are only citoyens. ये जो les citoyens and la patrie है, this is a French word. Then a new French flag. पहले अलग अलग flags होते थे, but a uniform flag. The royal tricolor was chosen. Then, if you remember, the Estate General was elected by the body of active citizens and they were called as National Assembly, जिन्होंने Declaration of Rights of Men लिखा था। New hymns, hymns मतलब वैसे तो hymns होते हैं श्लोक, लेकिन यहाँ पर it is for the songs. New oath were taken,
मार्टियर्स वर कॉमोमरेटेड मतलब उनको ग्लोरीफाई किया जाता था कि ये हमारे नेशन के हैं. फर्स्ट आपका ला पेत्रे, सेकेंड आपका फ्रेंच फ्लैग, थर्ड आपका नेशनल असेंबली, फोर्थ a centralized administrative system was put. There was a uniform law. There was a uniform law. पहले क्या था? Only the first estates and second estates got the privilege. लेकिन वो हटाकर यूनिफॉर्म लॉ लेकर आए. इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड. ये अभी आप पढ़ोगे, नेपोलियन बोनापार्टे का स्पेशल 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा. एक 5 मार्क्स का लड्डू वाला क्वेश्चन अभी आएगा, अभी आने वाला है, उसमें आएगा ये. रीजनल डायलेक्ट्स मतलब विद इन फ्रेंच ऑल्सो द पीपल स्पोक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेंच. सो उसको मतलब कि डिस्करेज करके फ्रेंच एज अ जैसा पेरिस में बोला जाता था उसको कॉमन लैंग्वेज बनाया गया. एंड दे आइडेंटिफाइड दैट दीज जो लोग सब ये सब कुछ यूज करते हैं दे ऑल विल बी कॉल्ड एज French. They all will be called as French. The revolutionary further declared that the mission and destiny of French nation was to liberate people of Europe, not only from France, from Europe, from despotism. Despotism होता है आपका, again the question comes, what do you mean by despotism? Means जो problems वो लोग face कर रहे थे द एब्सोल्यूट रूलर्स, उससे उनको छुड़ाया जाएगा. जब फ्रांस के इवेंट्स दूसरी जगहों पे जाने लगे तो द जैकोबिन क्लब्स वर सेट अप. हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटाली. और इस तरीके से जो फ्रेंच के जो आइडियाज थे दैट वर कैरीड फॉरवर्ड. दिस इज द मैप दैट इज 1800s में. दिस इज रशिया. ये तो अभी भी आपको दिखेगा, लेकिन ये जो ऊपर में आपको जो पोलैंड दिख रहा है विच इज पार्ट ऑफ रशिया, नाउ पोलैंड इज अ सेपरेट एरिया. ये ऑस्ट्रियन जो है इट इज राइट नाउ नॉट इन द मैप. अगर आप अभी का मैप देखोगे तो ये वाला जो है दिस विल नॉट बी देयर. ऑस्ट्रिया इज नॉट देयर. नीदरलैंड्स, डेनमार्क, then if you look France, Switzerland, then आप नीचे देखो small states, 2 kingdom. ये जो small states लिखा हो ना ये सारा आपका पहले अभी अब इसको हम जो है इटली बोलते हैं. ये जो ब्लू कलर का बना है किंगडम ऑफ द 2 सिसिली, सर्दीनिया जो है, these are all now इटली. ये पहले इटली नहीं था, ये अब इटली है. Then if you look on the right side, Bulgaria, Ottoman Empire, this you will be reading of that ki how this became the area of First World War. Then Spain, Portugal, this is there अभी भी है, लेकिन यहाँ पर आपका जो बवारिया दिखाई दे रहा है, या आप देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको जर्मनी नहीं दिखाई दे रहा. Can you see Germany on this map? No, na? Germany is not there because ये जो ऑस्ट्रिया, बवारिया, ये जो एरिया है ना, नाउ इट इज जर्मनी. तो ये कैसे आया था, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड. अब आपके पेपर में आता है इनोमरेट और एक्सप्लेन और व्हाट वर द फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड 1804. What is the other name for Civil Code of 1804? अब जब आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है खत्म हुआ था, at that period you remember नेपोलियन बोनापार्टे became the ruler of France, और उसके साथ हमारा वो चैप्टर खत्म हो गया था. तो and then we had read in that कि नेपोलियन बोनापार्टे was defeated in the Battle of Waterloo in 1815. तो जिस पीरियड में नेपोलियन बोनापार्टे was there as a ruler of France, what were the administrative measures that he had taken? आपके पेपर का 5 मार्क्स का सेकेंड क्वेश्चन. पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. What were the administrative reforms, या फिर write a short note on
यानी कि ये आपका आता है. Write some measures of civil, sorry, some important features of civil code of 1804. तो जब Napoleon Bonaparte became the ruler, he destroyed democracy in France, but he made some principles. कौन कौन से थे? उसके जो principles थे उनको बोला जाता है Civil Code of 1804. और what is the another name for Civil Code of 1804? Napoleonic Code. First, the privileges based on birth. मतलब पहले फर्स्ट एस्टेट्स एंड सेकेंड एस्टेट्स जो है दे वर गिवन द प्रिविलेजेस, उनको प्रिविलेजेस दिए जाते थे, राइट? दैट की फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट्स वर नॉट सपोज टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था. ओनली द थर्ड जो आपके एस्टेट से दे वर सपोज टू गिव द टैक्सेस, सो दैट वाज रिमूव्ड. Everyone was equal before the law and everyone had the right to buy the property. Second, उसने जो है जितने भी आपके फ्यूडल सिस्टम थे, मतलब गांव के अंदर द फ्यूडल सिस्टम यूज टू बी देयर, उसको अबॉलिश किया. He freed the peasants from serfdom. Now what is the meaning of serfdom? Serfdom होता है bonded labor. In some schools this question has come. What do you understand by serfdom? Serfdom का मतलब होता है आपका bonded labor. कुछ जगहों पर that was practiced, so that was removed. The manorial dues, मतलब जो मेनर्स होते थे, बड़े बड़े आपके जो जमींदार होते थे, उनके लिए जो ये काम करते थे तो they had to give some money, उसको हटाया. In the towns, the guild restrictions were removed. What is the meaning of guild restrictions? Guild मतलब जो आपके businessman होते थे, traders होते थे, उनका एक they used to have a group. They had to pay certain taxes. उसको हटाया. Transport and communication systems were improved. These all were the positive measures which was taken by Napoleon Bonaparte. Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom. पहले तो शुरू में सब लोग बड़े खुश थे क्योंकि all of them were benefited. Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize uniform law. पहले क्या होता था, अगर आप यूरोप के एक पर्टिकुलर एरिया में जाते हो, दूसरे पर्टिकुलर एरिया में आप सामान बेचना चाहते हो, तो फ्रॉम वन टू अनदर जब आप जाओगे तो आपको अलग अलग जो है टैक्सेस देने पड़ेंगे. एंड जो टैक्सेस होंगे सबका अपना एक करेंसी होता था और सबकी करेंसी की अपनी एक मीनिंग होती थी. वेट, कहीं पर 1 मीटर 55 सेंटीमीटर होता था तो कहीं पर 1 मीटर 190 सेंटीमीटर होता था. And the businessman had to pay the taxes according to that area. लेकिन नेपोलियन ने standardized weight and measure system, common national currency ये बनाया जिससे कि सारे बिजनेसमैन को फायदा हो गया, because the same currency, the same weight would be used all over Europe. However, जहां पर उस जिस एरियाज को उसने मतलब कि कॉन्कर किया था, जैसे हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, स्पेशली इन द सर्टेन एरियाज लाइक ब्राजील्स. ब्राजील्स आपका कौन है? बेल्जियम का कैपिटल था. मेन्स, मिलान इज इन इटली. वार्सा इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड. शुरू में तो द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी. हार्बिंजर मतलब जो लिबर्टी लेकर आता है शुरू में. But the initial enthusiasm soon turned to hostility क्योंकि उनको political freedom नहीं था. Why? Increased taxation, taxes बढ़ गए. censorship का मतलब क्या होता है? Curtail on freedom of speech.
People cannot criticize the government. People cannot criticize Napoleon. Forced conscription into the French army. क्योंकि वो चाहता था कि पूरे यूरोप में जो है उसका राज चले, तो वो जबरदस्ती सबको फोर्स रिक्रूट करता था. ये सब जो है that became the negative elements for Napoleon Bonaparte, and that is why he was defeated in the Battle of Waterloo. ये वाला पेपर में आया था 2 years back. This question came in the paper. This picture. ये दिखाया जा रहा है कि दिस इज नेपोलियन बोनापार्टे, और ये जो नीचे पेपर्स गिर रहे हैं, दीज आर ऑल द एरियाज विच ही हैड लॉस्ट, द बैटल ऑफ लिपजिग, सब कुछ उसका जो टेरिटरीज उससे जो हार गया था ये वो. ऐसा क्यों हुआ था? दैट इज बिकॉज ही हैड स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग देम. अब वो उन पर जबरदस्ती करता था. That is why these people became his enemies. इस वाले में से आपके पेपर में क्या क्या आएगा? पहला तो हमने पढ़ लिया है, that is how did the French national create the idea of one single nation state. जहां नेशन स्टेट, सिंगल नेशन स्टेट, what were the measures taken है, तो वो सारा क्वेश्चन आ जाएगा. And second is आपका what were the features of the Napoleonic Code 1804. That is आपका second question. Right now ये आपका जो ये वाला जो पढ़ रहे हैं, this is not very important, but इसमें आपको you will be understanding that कैसे उस वक्त में यूरोप आपका अलग अलग था, जो मैंने भी आपको मैप में दिखाया था. आज का जो जर्मन है वो वहां पे आपको जर्मनी नहीं दिखाई देगा. पहले you even had even we used to have one country called Yugoslavia, which is right now not there. Then Czechoslovakia, which is right now not there. Poland was part of Russia, but now it is an independent state. So what were, ये हमारा जो पैराग्राफ है, this is only explaining. इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा. जो क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा वो मैं आपको बताऊंगी. What we know today as Germany, Italy and Switzerland. मैंने भी आपको दिखाया था कि पहले इटली नहीं था. टू किंगडम्स ऑफ सिसिली, सर्देनिया, पिडमोंट, ऐसा था. दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स. मतलब कोई उसको किंगडम बोलता था, कोई डचीज बोलता था. मतलब डच जहाँ पे जो राजा होते थे, जो उनको डचीज, कैंटन्स होते थे. हमारे यहाँ जैसे आपके प्रोविंशियल एंड प्रिंसली स्टेट्स होते थे वैसे. द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप were under autocratic monarchies. Autocratic मतलब they would be, मतलब एक फादर की डेथ हुई तो अपने आप ही नेक्स्ट जो बेटा होगा he will become. There was no choice. Within the territories of which live diverse people. मतलब जर्मनी, अगर आज हम जर्मनी बोलते हैं तो वहां जर्मन फ्रेंच के लोग रहते हैं अभी भी, लेकिन उस वक्त में क्या था, अलग अलग तरीके के लोग रहते थे. They did not see themselves as sharing a collective identity or common culture. Often they spoke different languages, belonged to different ethnic groups. The Habsburg Empire ruled over Austria-Hungary, जिसमें आपके अल्पाइन रीजन के टायरोल, ऑस्ट्रेलिया, सुडेंटलैंड, बोहीमिया, मतलब ये सारा एक मिलकर होता था, जिसमें आपके जर्मनी भी थे. It also included Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half people spoke Magyar, others spoke other dialects. In Galicia, aristocracy spoke Polish, बाकी कुछ और बोलते थे. यानी they were living together, but सब अपनी अपनी भाषा बोलते थे, सबका अपना अपना कल्चर था. They did not know to which country they belong. A mass of subject peasant peoples, Bohemia, Slovaks, then आपके Slovens, Croats, Romans. So such differences did not easily promote a sense of political unity. अब कैसे आप उनको यूनिट करोगे? कोई कोई है तो कोई कोई है. They were not belonging to the same nation. They did not know to which nation they were belonging. बस
जहां उनका रूलर होता था, जिस रूल के अंदर वो रहते थे, दे वर जस्ट मेंबर्स. दे डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स. उन दिनों में 1800s में socially and politically a landed aristocracy was the dominant class on the continent. Means those who were rich, those who had land, and ये लोग आपस में जो है जुड़े हुए होते थे. They owned estates, बड़े बड़े घर, town houses, और French was considered to be diplomatic and high society. वो अभी भी है यूरोप में. The French are considered as supreme. This powerful aristocracy was numerically a small group. But ये थे कम, अमीर थे लेकिन कम लोग थे. The majority थे, they were peasantry. To the west, अगर आप डेनमार्क वगैरह के जाओगे तो वहां पे the land was formed by tenants and small owners. And Central Asia वगैरह में जाओगे तो there was serfdom. Serfdom का मतलब bonded labor. In western parts of central, the growth of industrial production, trade meant for growth of town, and emergence of commercial classes was based on production for the man. सबसे पहला जो इंडस्ट्री था, that came in England. Right now I think that is not part of your syllabus वो वाला chapter, but that was where सबसे पहले इंडस्ट्री आई थी इंग्लैंड में, मैनचेस्टर एंड लीड्स. सो नेचुरल है कि जितने भी आपके व्हाट वी कॉल एज डेवलपमेंट था, वो सबसे पहले आपका इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ था. सो जब इंग्लैंड के बाद फ्रांस, देन पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स. सो नाउ पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप ये नहीं था, तभी हमारे जो रशिया है वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम रहा. नाउ व्हाट हैपेंड. अब आपके इस वाले चैप्टर में, इस वाले में से आता है व्हाट डू यू, मतलब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी या लिबरलिज्म. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सफरेज. ये दोनों आते हैं इससे. लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट आता. The term liberalism derives from the Latin root liber. Liber मतलब free. And for the people, middle class, it was equality. It was two treaties of government. French Revolution में ये हुआ था. The end of autocracy, clerical privileges, a new constitution, representative, यही लोग चाहते थे. Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. Means equal तो थे, but not everyone was given the right to vote. जैसे फ्रांस के अंदर भी the rich people, the people who were having the property were given the rights. The women were not given. The people who were not having the property, they were not given. Now people ये भी चाहते थे. You will recall in revolutionary France, which marked the first political experiment, right to vote was exclusively given to property men. Men without property and all women were excluded. नेपोलियनिक कोड ने सफरेज दिया था, लेकिन तब भी विमेन को नहीं मिला था. The women got the right to vote in 1946. For the economic sphere, ये पेपर में आता है 3 मार्कर. अभी मैं बताऊंगी कैसे आएगा. Liberalism stood for the freedom of markets and abolition of state imposed restrictions on movement of goods and, मतलब इकोनॉमी में ज्यादा था. पॉलिटिकली तो लोगों को सिर्फ यही चाहते थे कि they need right to vote. But economically all the businessmen, all the people who were into the business, वो लोग सब क्या चाहते थे? They wanted that the taxes should be reduced. जो वो लोग अलग अलग तरीके का उनका restrictions होता था, goods के लिए ये नहीं ले जा सकते हो, वो नहीं ले जा सकते हो, उस पर खत्म हो. ये आपके पेपर में आता है यहाँ से, this one. अभी ये पूरा आपका important है. मतलब इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता, चाहे वो 1 मार्कर ही क्यों ना आए, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन.
Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities or confederation of 39 states. मतलब इन 39 states के अंदर यूनिफॉर्म करेंसी थी, यूनिफॉर्म वेट था एंड यूनिफॉर्म मेजर्स थे. पहले क्या होता था, मैंने जो अभी आपको बताया भी था, अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग अपने गुड्स को सेल करने के लिए उसे 11 कस्टम बैरियर्स में खड़ा होना पड़ता था और हर कस्टम बैरियर में ही हैड टू पे अबाउट 5% एट ईच ऑफ देम. सोचो, ड्यूटीज वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड और हर रीजन का अपना वेट एंड मेजर होता था. ये वाला पेपर में आया है, व्हाट इज ईल, ELLE, ईल. व्हाट इज एन ईल? द मेजरमेंट ऑफ क्लोथ, उसको उस जमाने में वाज द ईल. हम लोग कहते हैं मीटर सेंटीमीटर बोलते ना, तो उसको मेजरमेंट बोलते ना, तो वो लोग बोलते थे ईल. एन ईल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट इज जर्मनी वुड गेट यू 54.7. मतलब एक ईल 54.7 माना जाता था फ्रैंकफर्ट में, मेन्स में 55.1 माना जाता था, न्यूरमबर्ग में 65.6 माना जाता था और फ्राइबर्ग में 53.5. मतलब देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी. आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, राइट? हम यही पढ़ते हैं, 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. नाउ वी आर हैविंग अ यूनिफॉर्म मेजर्स, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, स्पेसिफिकली इन यूरोप. और इस वजह से जो बिजनेसमैन होते थे उनको बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि एवरी प्लेस जहां उनको, मतलब जहां भी उनको चुंगी होता था, चुंगी का मतलब होता है आपका ऑक्ट्रॉय, मतलब व्हेन यू आर क्रॉसिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर यू नीड टू पे सम मनी. हमारे इंडिया में भी था, बट नाउ इट हैज बीन अबॉलिश्ड. पहले हमारे यहाँ पर भी होता था. अगर आप दिलशाद गार्डन में रहते हो एंड फ्रॉम दिलशाद गार्डन इफ यू हैव टू क्रॉस यूपी, तो आपको अलग से ऑक्ट्रॉय देना पड़ता. अभी भी जो कैब ड्राइवर्स होते हैं दे हैव टू पे. तो उस वक्त में दे हैड टू पे, और हर एक जगह पे अलग अलग मीनिंग. अब आपका जो है, आप अगर गुड़गांव में जाओगे तो भी आप 100 रुपए दे रहे हो, अगर आप यूपी में जा रहे हो तो भी 100 रुपए दे रहे हो, और 100 रुपए का मतलब एक ही होता है, यूनिफॉर्म है, लेकिन वहां अलग अलग होता था. Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial class, who argued for a creation of unified economic territory. और इसीलिए लोगों ने बनाया था a very 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 you can say common or repeated question, what is zollverein? What is zollverein? बहुत ही repeated है. Just take out any question paper, you will find this question on the very first question. पहला question ही होगा आपके पेपर में, what was zollverein? zollverein was the custom union. मतलब जितने भी यूरोपियन लोग थे उन लोगों ने मिलकर अपने आप को एक यूनियन में बनाया था, जिसका नाम था zollverein. It was formed at the initiative of Prussia and joined by the German states. इनकी डिमांड थी, zollverein की डिमांड थी, abolish the tariff barriers. पहले 30 करेंसीज यूज होते थे, and reduce the number of currencies. The creation of network of railways, ये बाद में बना था. अरे ये सारी जो चीजें थी ये इनकी मांग थी. Zollverein was an economic trade union. In one marker, if this question comes, you should write that Zollverein is a trade union or a trade union of economy, क्योंकि trade is basically for the business. तो it was an economic ट्रेड यूनियन, और इनका एम यही था टू बाइंड. यहां पर देखिए ऑन द राइट साइड आई एम मार्किंग द एम ऑफ zollverein इज टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन. इकोनॉमिकली मतलब जहां आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द बिजनेस,
rules and regulations for the taxes, rules and regulations for paying the revenue should be equal. This, ये अब जो आ रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज मतलब कि what were the features या फिर some of the properties of 1815. मतलब 1815 में नेपोलियन हार गया था, ठीक है. तो आफ्टर द डिफीट ऑफ 1815 what provisions were given अंडर, मतलब क्या हुआ था, फ्रांस का क्या हुआ था जब नेपोलियन हार गया. तो नेपोलियन जिस जिस जगह पे रूल कर रहा था वहां पे क्या हुआ था. What were some of the provisions of the Treaty of Vienna? नेपोलियन जो है, he was collectively defeated by the armies of Britain, Russia, Prussia and Austria. This is it here there. In 1815, the representatives of European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria collectively defeated Napoleon. And they met at Vienna. Vienna is a place. और इसको हम बोलते हैं the Treaty of Vienna, 1815. The Treaty of Vienna, 1815. Some of the people wanted the conservatism. Conservatism का मतलब वही पुराने जो आपके institutions थे, monarchy या फिर religious, उनको they should have the control, but with the recent changes, वो ये चाहते थे. A modern army, efficient bureaucracy, dynamic economy, abolition of feudalism, मतलब ये सब वो चाहते थे. लेकिन रूल कौन करेगा? Not democracy, not autocracy, but the old regime, जैसे पहले चल रहा था वैसे. और ये जो विना में वो लोग हुए थे, the Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. Please underline this. One of the most important question की who hosted the Congress at Vienna. जो विना में आपका सेटलमेंट हुआ था, that was hosted by the Austrian Chancellor. Chancellor होता है वहां का प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम था मेटरनिच. और अभी एक पेपर में एक क्वेश्चन और आता है, who commented that when France catches cold, when France sneezes, the entire Europe catches cold. He is one of the prominent figure. वहां पे the people from Britain, Russia, Prussia, Austria सब आए हुए थे. And now they wanted to draw a new map. तो क्या किया उन्होंने, ये वाला जो पूरा है, ये वाला है, यहां से यहां तक, ये पूरा आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है. What were the provisions of the Treaty of Vienna? The Bourbon dynasty, which had been deposed during French Revolution, उसको पावर में लेकर आ गए. And France lost the territories it had annexed under Napoleon. नेपोलियन ने जिन एरियाज को फ्रांस का हिस्सा बनाया था, उसे फ्रांस से दोबारा हटा दिया गया. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion. ऊपर की तरफ आपका जो है नीदरलैंड्स, that is Belgium, Geneva आपका which is near the Italy. Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given the control of northern Italy. बाद में आप पढ़ोगे नॉर्दर्न इटली से ऑस्ट्रिया को कैसे भगाया गया था. लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन था ऑफ 39 स्टेट्स, उसको कुछ नहीं किया गया. दैट वाज जर्मन. रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, while Prussia was given part of Saxony. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon. और दोबारा से आपका जो है conservative regimes were set up.
अब ये लोग कैसे थे? ये जो पहला वाला पैराग्राफ है, दिस इज द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ विना. कंजर्वेटिव्स वर ऑटोक्रेटिक. दे डिड नॉट लाइक क्रिटिसिज्म. उन्हें कोई क्रिटिसाइज करता या उनसे कोई क्वेश्चन करता तो दे वुड बी एंग्री. दे वुड पुट सेंसरशिप न्यूज़पेपर पर. जो पहले लिबर्टी था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, वो सब खत्म. द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स. और शायद इसी वजह से दो द कंजर्वेटिव्स केम इनटू पावर, येट हर एक एरिया, आपका जर्मनी, आपका इटली, सब अलग अलग नेशंस बन गए लेटर ऑन. आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज द बैकड्रॉप ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था. राइट. देन नेपोलियन बोनापार्टे ने व्हाट द मेजर्स दे हैड टेकन. देन हाउ डिड पीपल वांट पॉलिटिकल फ्रीडम, सफरेज, इकोनॉमिक फ्रीडम, ज़ोल्वेरिन, फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वेरिन, ये पढ़ा. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा दैट आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, जब 1815 में, तो ट्रीटी ऑफ वेना वाज होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिच इन ऑस्ट्रिया. एंड उसमें जो है कुछ पोर्शन जो फ्रांस के थे, जिसको जो पहले फ्रांस के नहीं थे बट बाद में नेपोलियन ने ऐड किया था, उसको अलग कर दिया गया. फ्रांस के चारों तरफ बॉर्डर बन गया, ऊपर नीदरलैंड बन गया, नीचे आपका इटली बन गया. कुछ पोर्शंस जो है, उस वक्त में इटली नाम नहीं था, तो ऑस्ट्रिया को इटली का ऊपर वाला पोर्शन दे दिया, प्रूशिया को मतलब कि कुछ पोर्शंस दे दिए सैक्सोनी का, रशिया को पोलैंड दे दिया, और इस तरीके से एक नया मैप बना. दिस इज वंस अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर. राइट.